नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दर्शन इंस्टीट्यूट में। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी। ओके, टिल नाउ वी हैव स्टडीड फर्स्ट टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेकंड टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट्स, and today we are going to learn about Bayes theorem. Okay, this is the most important topic in probability. Okay, before Bayes theorem we have to understand what is total probability. Okay, suppose we have so many events. Suppose that this is E1, this is E2, this is E3, this is E4, and this is E5. Okay, let's take this is a particular event A. We have to find the probability of A. Okay, and these are the different events E1, E2, E3, E4, E5. Okay, first we must know what are the probabilities of E1, E2, E3, E4, E5. Okay, suppose we have to find probability of A intersection E1. Okay, probability of A intersection E1. ठीक है, we have already studied PA E1 equal to P of A intersection E1 upon probability of E1, right? This is the conditional probability, and we have to find probability of A intersection E1. Okay, so we can multiply this by P probability of E1, the probability of E1 into probability of A when E1 is given. Okay, what is this one? Probability of A when E1 is already happened. That means this is talking about this one. Okay, similarly we have to find probability of A when E2 is given. That means this. Okay, similarly E4, E5, E3. E5 is this one, E4 is this one, E3 is this one. ठीक है, तो how to find total probability of event A? Okay, so we have to find probability of A, probability of E1, probability of A by A1. Okay, plus probability of E2, probability of A by E2. Similarly, probability of E5 and probability of A by E5. This is the total probability of finding event A. Okay, first we must know what are the probabilities of E1, E2, E3, E4, E5. Then we have to find the probability of event A when E1 is already happened, E2 is already happened. This is the total probability of A. Okay, suppose let's take an example. Suppose we have 3 boxes. Before Bayes theorem, this total probability you must understand. Okay, in first box, box 1, box 2, box 3, there are 4 red balls and 6 black balls. 3 red balls, 7 black balls, 5 red ball, 5 black balls. Okay, and we have to find a ball is drawn. We have to find the probability of a ball is drawn, and that is black. Okay, A event क्या होगा मेरा? Ball is drawn randomly is black. Okay, but इसने क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया that ball is drawn from which box. Okay, so we must consider these are the different events E1, E2, E3, and it is given that box 1, box 2 and box 3 are equally likely. That means all the 3 probabilities are equal. That will be equal to 1 by 3. Okay, this is given. Equally likely means probability of happening box 1, that means probability of drawing a ball from that boxing particular box are equal.
1/3, 1/3, 1/3. Suppose there are 4 boxes, then probability will be 1/4, 1/4, 1/4. If individually probability are given, then it's okay. Suppose इसकी probability given है 1/2, इसकी probability 1/3, इसकी probability 1/6. Then we'll take 1/2, 1/3, 1/6. Okay. Before that, we have to find probability of A. Okay. Suppose that black ball is drawn from the box 1. Okay. That black ball is drawn from box 1. Okay. So we have to find the probability that one. Oh. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1. बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो गिवन है इक्वली लाइकली, दैट मीन्स 1/3, 1/3, 1/3. ओके. एंड देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग बॉल ब्लैक व्हेन box 1 is already given. Box 1 is already given. Okay. What is that? Black ball की probability 6/10. This is the probability that black ball is drawn from box 1. And similarly, we have to find probability of box 2 and probability of 7/10. Black ball drawn from box 2. Similarly, 1/3 and 5/10. This is the total probability of drawing black ball from the particular box. Not a particular box, randomly. Okay, this is the total probability. Understood? Okay, let's repeat this again. First, we have to find the probability of boxes. Okay. Second, we have to find the probability of particular event which is asked in the question. Okay. Suppose in this question it is asked that find the probability one ball is drawn randomly, that is black. So black ball is drawn from box 1. Black ball is drawn from box 2. Black ball is drawn from box 3. We have to take only 3 cases possible, because it is not given in the question that ball is drawn from a particular box. Okay. Understood? Now comes Bayes theorem. ठीक है? Bayes theorem. What Bayes theorem says? If you understood the total probability, then it is easy. How? When Bayes theorem, it will be given that particular ball is drawn from a particular box. Suppose in the same question, it is given that find the probability that ball is drawn from box 2. Okay. Then what is the probability? Then probability will be probability of A2 upon A1. This is the probability that is asked in the question. Okay. What will be the formula? Probability of E2, probability of A by E1. E2. ठीक है. And total probability A. It is already calculated and we have to find this one, and this is the second case. Okay. If question is not asked that something event is taken from the particular box or something like that, then case the probability, total probability. If something given, it is given that the particular event is happening from a particular box, then that question will be from Bayes theorem. Okay. Let's solve some question. Okay, let's take this example. This is very important topic. Every year 4 to 5 marks question directly come from this topic. Okay. In a factory which manufactures bolts, machine A, machine B, machine C मैन्युफैक्चरिंग रिस्पेक्टिवली. देखो दे दिया ना इसने कि ए की प्रोबेबिलिटी, जो बोल्ट बने हैं ए से बने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 25%, बी से बने हैं 35% और सी से बने हैं 40%. ये प्रोबेबिलिटी होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा मेरा 0.25, बी क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.35 एंड सी क्या होगा 0.4. ठीक है. ऑन दी ऑफ अदर देयर आउटपुट्स 5, 4, 2 % आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट. यानी ए से डिफेक्टिव बनते हैं 5%, बी से बनते हैं 4%, सी से बनते हैं 2%. Okay. A bolt is drawn randomly from the product and it is found that it is defective. Suppose this is the only question. It is not asked. This part is not asked. Okay. Find the probability that bolt is drawn and that is defective. अब that suppose करो जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव तो कहीं से भी आ सकता है ना भाई. ए से भी आ सकता है, बी से भी आ सकता है, सी से भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है कि इससे आना है. ठीक है. तो वी हैव टू फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी. ठीक है. टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लिया इवेंट मेरा जो कि डिफेक्टिव बोल्ट है, यानी वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू सपोज द डिफेक्टिव बोल्ट इज टेकन फ्रॉम मशीन ए। ठीक है, देन दिस इज व्हाट इज दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट व्हेन मशीन ए इज प्रोड्यूसिंग दैट। ठीक है, तो क्या बनेगा, ऐसे टोटल ऐड करेंगे सबका, क्या होगा इसका आंसर। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इट इज प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव 5% यानी 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 30.35 कितना प्रोड्यूस कर रहा है डिफेक्टिव 0.04। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 0.4 इंटू प्रोड्यूस कर रहा है 0.2। ये आंसर होगा टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर, नीचे आएगा जो डिनोमीटर में आएगा। अब देखो क्या बोल रहा आगे बेस थ्योरम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। बोल दिया ना मशीन बी, अब क्या आ जाएगा, ये तो नीचे आएगा टोटल, मेरा ऊपर क्या आ जाएगा, मेरा ये वाला फैक्टर आ जाएगा 0.035 इंटू 0.35 इंटू 0.04 डिवाइड बाई दिस, ये आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड, यानी जितने भी बेस थ्योरम के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें ये वाला तो निकालना ही पड़ेगा। और ये डिनोमीटर में क्या होता है, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद ये क्वेश्चन में ये बोल दे कि भैया ये जो इवेंट हो रहा है किसी पर्टिकुलर बॉक्स से हो रहा है, किसी पर्टिकुलर मशीन से हो रहा है, किसी से भी हो रहा है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है, समझ में आई बात। ये वाला लिख रहे फिर क्या अपना यही है, कैसे लिख सकते हो तुम इसको। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन वो करें। हाँ चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक बार खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो खुद एक बार क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलता है, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4। दैट मीन्स जो बंदा है वो 4 बातों में से 3 बातें सच बोलता है, यानी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 3/4। ओके, ही थ्रोज ए डाई, उसने एक डाई फेंका एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए 6। प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक्चुअली में 6 है। प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक्चुअली में 6 है। कैसे करेंगे, सोचो एक बार। ठीक है, सोचो एक बार क्या होगा। वो सच बोलता है भैया, वो सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 1/4। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब उसने डाई फेंक दी और डाई फेंकी, उसने बोला कि ये 6 है और एक्चुअली में 6 है। अब देखो उसने सच बोला, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4 और एक्चुअली में 6 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ये तो हो गया मेरा फेवरेबल ऊपर जो आएगा आंसर निकालना अपने को, आंसर निकालो डायरेक्ट 1 लाइन में। 3/4 क्या सच बोला उसने, और बोला क्या कि भैया 6 है और एक्चुअल में 6 भी है, 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। अब नीचे तो ये केस तो आना ही है ऊपर वाला प्लस। और क्या केस बन सकता है, और क्या केस बनेगा इसमें कि उसने झूठ बोला हो कि बोला हो 6 है, झूठ बोला हो और बोला हो क्या 6 है। उसने झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, झूठ बोला है कि उसने 6 है, बताओ झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया बताओ जरा एक बार। 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 या 5/6। अरे अगर 1/6 तो तब होती ना जब एक्चुअली में 6 होता, जब एक्चुअली में 6 होता। अब तो झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है मतलब 6 नहीं है, वो 6 नहीं है तो क्या होगा, बाकी कुछ होगा। ये आंसर आ गया, समझ में आई बात, ये आंसर आ गया। ठीक है, 1/6 3/4, 1/6 3/4, 1/4 5/6। ओके चलो एक दो क्वेश्चन वो करते हैं। एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं जो बच्चों को दिक्कत आती है करने में। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, तो एक बार लिखने का तरीका समझ में आ गया तुम्हें। इवेंट ABC लिखना है उसको, उसके बाद उसको कर दो तो आंसर निकाल देगा लाइन में, कोई दिक्कत नहीं, आंसर पूरे मार्क्स मिलेंगे उसको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव, ठीक है, इन डिटेक्टिंग सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। जब एक्चुअल में कोई डिजीज़ हो ना, वो जो मशीन है ना लेबोरेटरी टेस्ट जो करती है वो 99% इफेक्टिव है, मतलब उसको डिजीज़ है तो 99 टाइम्स बता देगा कि डिजीज़ है भैया इसको। ओके, हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट और फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। इसका क्या मतलब है कि किसी बंदे को कोई डिजीज़ नहीं है,
कोई डिजीज़ नहीं है, फिर भी वो क्या करेगा 0.5% चांसेस हैं कि उसको बता देगा कि भैया बीमार है, तो पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, ठीक है। ओके, इफ़ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिजीज़, यानी 0.1% पॉपुलेशन को एक्चुअल में डिजीज़ है, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज़ द डिजीज़ गिवन दैट टेस्ट इज़ पॉजिटिव। एक बंदे को डिजीज़ है और टेस्ट भी क्या है मेरा पॉजिटिव आया, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा? देखो, उसको एक्चुअली में डिजीज़ है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन को डिजीज़ थी? 0.1% को, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिजीज़ होने की? 0.01, ठीक है। और जो टेस्ट हो रहा है वो भी क्या दिखा रहा है? उसको एक्चुअली पॉजिटिव दिखा रहा है, उसकी 19% इफेक्टिव है, तो 0.9 ये हो गया ऊपर। नीचे क्या आएगा? ये तो आएगा ही प्लस। अब क्या कर रहा है कि भैया जिन लोगों को डिजीज़ नहीं है उनको भी क्या दिखा रहा है? वो फॉल्स पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इसकी अब कितने लोगों को डिजीज़ नहीं है? 99.9% लोगों को नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी? 0.99। और उसको भी फॉल्स पॉजिटिव दिखा रहा है, 0.5% प्रोबेबिलिटी 0.05। ये आंसर आ जाएगा। ओके, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ओके, अंडरस्टूड। चलो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। कोई भी ले लो, सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन होंगे। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। ओके, एक कार्ड गुम हो गया भैया 52 में से। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, ठीक है। डायमंड कितने होते हैं? 13, बाकी 39 बचे। तो डायमंड की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/52 यानी 1/4। इसकी क्या होगी? 3/4। ओके, अब क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो लॉस्ट कार्ड हुआ ना, वो भी डायमंड है। सिंपल सा लॉजिक है। देखो, एक कार्ड लॉस्ट हो गया, ओके। अब क्या बोल रहा है? फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, यानी 51 बचे। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड 2 कार्ड निकाले गए, दोनों मिले डायमंड, दोनों डायमंड मिले, यानी जो डायमंड के कितने बचे होंगे? अभी 12 बचे होंगे, ठीक है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो लॉस्ट कार्ड था वो भी डायमंड था। अब लॉस्ट कार्ड डायमंड था, देखो डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। अब लॉस्ट कार्ड डायमंड है, अब 2 कार्ड निकाले, प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी? 12C2/51C2। या ये बोल लो, अगर ये समझ नहीं आ रही तो ये चीज़ समझ लो। एक कार्ड निकाला मैंने, एक कार्ड निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/51। अगले की क्या होगी? 11/50। ये होगी प्रोबेबिलिटी डायमंड की। ये तो नीचे आएगा ही, 1/4 12/51 इंटू 11/51। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? कि जो कार्ड गुम हुआ है वो डायमंड है। प्लस ये भी तो हो सकता है ना भाई, जो कार्ड गुम और डायमंड ना हो तब डायमंड निकाले गए हो, तब डायमंड निकालने, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ना डायमंड नॉन डायमंड वाले की 3/4। अब क्या है? अब डायमंड निकाले गए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/51 और 12/50। ये आंसर हो गया। ओके, समझो ध्यान से, दोबारा बता रहा हूँ क्वेश्चन। ये एक कार्ड गुम हो गया है, उसमें से बचे 51 कार्ड। अब उनमें से 2 कार्ड निकाले, दोनों की डायमंड है, वो डायमंड की प्रोबेबिलिटी तो 1/4 होगी, कि डायमंड की होती है इतनी, बाकी 3/4 होगी। अब एक कार्ड निकाला डायमंड है, तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/51, क्योंकि टोटल कार्ड है 51 और डायमंड है 12। अब एक और कार्ड निकाला, उसके बाद 11 बचे, कितने थे? 50। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी, नीचे आएगा। अब जो कार्ड गुम हुआ है, मान लेते हो क्या मेरा नॉन डायमंड है, तो डायमंड 13 बचेंगे, तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 51, 13/51 और 12/50। तो ये आंसर सोल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा।